جی السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں محمد فیصل عزیز اور میرے دوست نعمان بشیر، قمر حسن. جی تو ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے نا یہ ہے کہ آپ بزنس آئیڈیاز تھوڑے سے پیسوں سے کون سے دے سکتے ہیں اسی کے اوپر ہے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک اماؤنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ ہے، اس میں ہم نے یہ بزنس آئیڈیاز کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 لاکھ کے بیچ میں ہم نے بزنس آئیڈیاز کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بتائیں کیا کیا ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ بتائیں جی. اچھا میں سٹارٹ کر رہا ہوں. ایک تو نا آج سے جو 10 سال 15 سال پہلے کے اگر تھوڑے سے دور میں چلے جائیں تو لوگوں میں شیئرنگ بالکل نہیں تھی. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا تو اتنے بزنس آئیڈیاز آ گئے، لیکن جو عوام انٹرسٹ لے، جو لوگ انٹرسٹ لیں. تو میں مطلب ایک ویسے میرے ذہن میں آئیڈیا، میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھی تھی کہ سوپ پروڈکشن، صابن. اب میں نے نا کل یا پرسوں نا OLX پہ میں دیکھ رہا تھا مشین، تو 2.5 لاکھ روپے اس کی مشین آئی، 2.5 لاکھ روپے کی سوپ کی. مطلب کہ اب اس کے اندر جو الکلی جو کیا کہتے ہیں سوڈیم کلورائڈ اور ڈفرینٹ چیزیں وغیرہ اس کے اندر یوز ہوتی ہیں، وہ کیمیکلز وغیرہ اگر آپ بلک میں لیتے ہیں تو وہ کافی سستے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایک مطلب صرف 2 مشینوں کی ضرورت ہے. اس کے اندر ایک جو پیلٹس ہیں اس کو مکس کر کے پھر جو دوسری مشین ہے وہ اس کو سولڈ فارم میں سوپ بناتی ہے. اور آپ اس کے بعد اپنی برانڈنگ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا ایک برانڈ اسٹیبلش ہو جائے گا پاکستان میں، بے شک چھوٹے لیول پہ ہوگا. تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ سوپ اس کے اندر مطلب اس مشین کے اندر آپ ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں سوپ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر لیمن مطلب وہ جو آ جاتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں برتن وغیرہ دھونے کے لیے. اس کے بعد آپ ویسے گھر وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں، باڈی کے لیے یوز کرتے ہیں، بیوٹی کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اب لوکل ایریاز میں آپ کو رائیون روڈ کی بتاتا ہوں. اب ادھر ایک ٹاؤن ہے دبئی ٹاؤن. اب ادھر ہم ہر شاپ پہ جائیں گے، ہم چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہیں تقریباً اس ٹاؤن میں 10 سے 12 شاپس ہیں، اور ہر شاپ والے کے پاس ایک نئے برانڈ کا سوپ پڑا ہے. اچھا. اتنے لوگ اس کاروبار میں انٹرسٹڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں گھر بیٹھ کے. اور وہ اس کے لیے کوئی زیادہ جگہ نہیں چاہیے، کوئی 3 مرلے کے ایریا میں آپ کی وہ مشین سیٹ ہو جائے گی آپ کے گھر میں. نہیں یہ بتائیں نا کہ اماؤنٹ کتنی چاہیے؟ اماؤنٹ اس کی تقریباً میں ابھی دیکھ رہا تھا نئی مشین کیا کہتے ہیں آپ کو مل جائے گی 2.5 لاکھ روپے کی. اچھا. اور ساتھ ایک اس کا مکسر ہے وہ آپ کو مل جائے گا 50,000 میں. اچھا. زیادہ سے زیادہ 3 to 4 لاکھ کے اندر آپ کا یہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے گا. ویری گڈ. اس کے بعد برانڈنگ آپ کی اوپر آپ کا نام وغیرہ آپ کا اپنا ہوگا، اور وہ الگ پاکستان میں سستے سمجھے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ 4 لاکھ میں زیادہ سے زیادہ 4 لاکھ اس میں آپ اپنا خود کا ایک کمپنی بنا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کون سی؟ میں جو آج کل جیسے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہائیجین پہ آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا کچھ انوائرمنٹ بھی ایسا ہے کہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں سیپریٹ کھاؤں اور صاف برتن میں کھاؤں. تو یہ جو اتنا بڑی جو کمپلیکیشن آ رہی ہے آگے کہ ڈیزیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، ایک دوسرے کی چیزیں یوز کرنے سے پھیلتا ہے. تو ہمیں ڈسپوزیبل کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم ایک چیز یوز کریں اور وہ سنگل ٹائم یوز ہو اور وہ پھینک دی جائے. ٹھیک ہے. تو ریسائکلنگ پہ آئیں لوگ، اس کو ڈسپوزیبل کا بہت اچھا بزنس ہے. اور یہ مجھے لگ رہا ہے زیادہ سے زیادہ 1-1.5 لاکھ. ہاں 1-1.5 لاکھ لگے گا، اور اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ سپلائی بندہ پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ابھی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی. تو یہ ایک نارمل بندے کے لیے 4 سے 5 لاکھ جس کا بجٹ ہے تو اسٹارٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بزنس ہے. ویری گڈ یار. اور میرے پاس بھی ایک آئیڈیاز ہیں، وہ ایک 50 سے 1 لاکھ کے درمیان یہ ایک چھوٹا سا بزنس آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم گھروں میں یوز نہیں کرتے وائپر، یہ انتہائی ایزی یہ بنی بنائی چیزیں ہیں. ہول سیل ریٹ پہ آپ لیں، جیسے سیمپل کرنی ہے گھر میں آ کے سیمپل کر لیں. وائپر بنا کے لوگ 50,000 کی انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی ہوئی ہے. فیکٹری اسے لگا دیتے ہیں ایک کمرے میں، وہ وہاں سے کام سٹارٹ کریں. ایک اور ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 50,000 کا ہی ہے. اس کا یہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل کے فلٹر نہیں ہوتے، فلٹر میں نے ویڈیو دیکھی. ہاں فلٹر، وہ بھی ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے کہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ 50,000 کا وہ ہے. ایک ہی بندہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ اور زیادہ بندے بھی بیچ میں نہ آئے، ایک ہی بندہ وہ سارا کام کر کے خود ہی سیمپل کر رہا ہے اور خود ہی. میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا. بائک کی سروس وغیرہ کروانے جائیں تو میرے خیال میں اس پہ بنانے میں 60 روپے بھی نہیں لگتے ہوں گے. بالکل اس طرح. اور 160 روپے کا پڑتا ہے. 160 روپے کا بنتا ہے. تو 50% جو میرا خیال ہے ڈبل پروفٹ تو کوئی بھی بزنس نہیں دیتا آپ کو. اور چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہے. اور ایک آج کل ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ آن لائن جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی 2 سے 3 لاکھ میکسیمم اماؤنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرنا سٹارٹ کریں نا، اس کی ہاؤ نو تھوڑی سی
थोड़ी सी हाउ नो जरूर लें। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि ये काम है और आप उसके बीच में चढ़ दौड़े। हाँ चढ़ दौड़े। थोड़ी सी हाउ नो लें। 50 से 60 हज़ार वाला काम है, उसके बारे में थोड़े से 10 से 15 दिन उस पर लगाएं कि हाँ मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और कैसे इसको मैं आगे डेवलप करूंगा। तो इस तरह ही है कि आप छोटे से अमाउंट से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पेट्स रिलेटेड भी बहुत सारे हैं, पेट्स ग्रूमिंग सर्विसेज दे सकते हैं आप ऑनलाइन, ये आप बिल्कुल सर्विसेज दे सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल ऐसी है, बड़ी अच्छी बात की है आपने। और इसके अलावा रेडी वगैरह भी, इस पे भी हाँ, बल्कि रेडी पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे सर ने एक आइडिया दिया था, बिजनेस आइडिया, कि मतलब 5 लाख रुपए में आप 50,000 वाली अगर एक रेडी लगवाएं तो 5 लाख में कितनी लग जाएंगी? 10 रेडियां लग जाएंगी। अब आपने उनको मतलब सबसे पहले ये करना है कि 15-16 हज़ार रुपए की रेडी आपने ले दी उनको एक, और उसके ऊपर आपने 30-40 हज़ार रुपए का उसको फ्रूट रख दिया वन टाइम, और आपने उसे अमाउंट फिक्स कर देनी है। आपने मुझे डेली का 1000 देना है, 2000 देना है, और वो लाइफ टाइम चलेगा। अच्छा, उसके बिजनेस का बिजनेस मतलब वो फॉर एग्जांपल एक दिन में गेन कर अपना प्रॉफिट कमा रहा है 3000, और वो आपको 3000 में से 1000 रुपया आपको देगा और 2000 रुपया अपने प्रॉफिट में रखेगा, और इसका फ्री बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया और हमें प्रॉफिट आ रहा है और लोगों को रोजगार मुहैया हो गया। और इस हिसाब से अगर आपने 5 लाख रुपए में 10 रेडियां लगवाई हैं तो रोजाना का आपकी जेब में 10,000 रुपए बैठे बिठाए आ रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज है, और 10 लोगों को बिजनेस भी मिल रहा है, वो भी चेक करो। 10 लोग जो है, 10 लोग ही सिर्फ 10 फैमिलीज खा रही हैं। 10 फैमिलीज खा रही हैं। बड़ी बात है यार, ये तो एक छोटे से उससे आप बहुत बड़ी एक तरह की छोटी सी आपने फैक्ट्री लगा दी है जिसमें 10 लोग आपने हायर भी कर लिए। वेरी गुड यार, ये तो बहुत। दरअसल पाकिस्तान के अगर हम बड़े लोग देखें ना, अब वो ज्यादा दौड़ रहे हैं ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ले लेके अब जमीनें, ये कारोबार, उनके ज़हन में है कि बस बैठे बैठे इन चीजों पे गिरफ्तार डाली जाओ। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां ना, इन्हीं से ही हमारे मुल्क में मेरे नजदीक तो हमारे जो मेयार जिंदगी है वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले तो बंद करके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि बिजनेस आइडियाज हम दे तो जरूर रहे हैं छोटी अमाउंट से, लेकिन जो बड़ी अमाउंट वाले थे वो तो इस मुल्क को वैसे छोड़ के वो जा रहे हैं। जो एक बड़ा यूनिक आइडिया है कि आप जो है वो लेदर चाइना से इजीली आ जाता है, ठीक है। आप मल्टीपल तरह का जो लेदर मंगवा के आप डिफरेंट तरह के बेल्ट्स बना सकते हैं। उसकी भी जो मशीन है सिलाई करने वाली, उस लेदर को सिलाई करने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है जो कि 1.5 से 2 लाख के अंदर आ जाती है। उसमें करना ये आपको एक बंदा जस्ट रिक्वायर है, आपको मशीन रिक्वायर है और आपको लेदर रिक्वायर है, ठीक है। कटर होते हैं, आपने जस्ट लेदर को काटना है, उसे डिजाइन देना है, सिलाई करना है और रेडी टू सेल है वो, ठीक है। और बेल्ट्स की डिमांड, क्योंकि मार्केट में जो भी बेल्ट्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, तो अगर आप कम कीमत पे ज्यादा प्रोड्यूस करके होलसेल भी दें तो उसकी बहुत डिमांड है बेल्ट्स की, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया है जो कि अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उसके। यार डॉक्टर साहब एक और आइडिया, जैसे आजकल अब सर्दियां आने वाली हैं, एक आइडिया आप कभी जाएंगे ना ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे, वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत महंगी इनके पास चीजें होती हैं। चलगोजा लगा दें, किसी के पास एक कोई जानने वाला या रिश्तेदार होता ही है जो शुमाली इलाका जाते होता है, वजीरिस्तान वगैरह, जनूबी वजीरिस्तान या शुमाली वजीरिस्तान, इन इलाकों में चलगोजा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप अभी रेट चेक करें, चलगोजे का 6,000 रुपये होगा, तो वहां से आपको वो कम से कम 2,500, 2,700-2,800 की रेंज में एक अच्छी क्वालिटी वाला चलगोजा आपको मिल जाएगा। वो आप जैसे बड़े बड़े शहर हैं उनमें वो सप्लाई दे सकते हैं। एक छोटे बिजनेस 5 लाख से वो काम स्टार्ट हो सकता है। बेहतरीन, वो पैकिंग में चलगोजा हम डिफरेंट सुपर स्टोर्स पे बेच सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं कम कीमत पे। बस इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि आपका नेटवर्क थोड़ा आगे स्ट्रॉन्ग कर लें आप। बिल्कुल थोड़ा सा शुरू में आप थोड़ा सा काम कर लें, और उसके बाद ये है कि ये लॉन्ग टर्म ये एक आपका बिजनेस है। और डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जरा अपनी वेटरनरी की फील्ड के रिलेटेड, जैसे हमारे लाइफ स्टॉक में बड़े बड़े फार्म्स हैं, और ज्यादा ये है कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, बुरे वाला, पाकपतन, आरब वाला, उधर फार्म्स की रेशियो बहुत ज्यादा है, और उस वजह से कंपनीज का रुझान भी उस तरफ ज्यादा है, और उधर दूध की प्रोडक्शन भी ज्यादा है और रेट भी कम है। मतलब इतना कम है कि लाहौर में जो क्या कहते हैं बेकरीज बड़ी बड़ी, वो आपसे 220 से लेकर 240 तक पर केजी दूध ले लेती है। अच्छा। तो उधर हमें जो फार्म पे अगर आप बड़े लेवल पे दूध लेते हैं किसी फार्मर के पास जाके, तो वो आपको 150 से 160 तक पर केजी दे देगा दूध, जो आज ये कल का रेट है। और आप अब उधर आजकल ऐसी, क्योंकि हर बंदा ट्राई कर रहा है अपना बिजनेस कोई ना कोई करे और अच्छे मतलब प्रॉफिट हो उसमें,
तो वो अब लोगों ने जो क्या कहते हैं बड़े लेवल पे ट्रक्स वगैरह होते हैं, क्या कहते हैं, तो मतलब वो ट्रक्स वगैरह ये है कि वो अंदर से बिल्कुल कोल्ड है, फ्रीज वगैरह आपका कर लेते हैं दूध, तो वो आपको मतलब 6 to 7 आवर्स में बुरे वाला बिहाड़ी से ये वाला से दूध ट्रांसफर कर देते हैं लाहौर रीजन में। तो आप इधर की अगर आपका नेटवर्क आगे स्ट्रॉन्ग है, वही बात आ जाती है, किसी बेकरी वगैरह के साथ आपने डील की हुई है, आप उनसे एडवांस ले लेते हैं पैसे, तो आप उनको दूध दे सकते हैं, और मतलब उसके अंदर से तकरीबन पर केजी मैंने पता किया था 40 से 50 रुपीज जाते हैं जो ट्रांसपोर्टर के पास, और बाकी जो प्रॉफिट होता है 60 to 70 रुपीज वो आपकी पॉकेट में आता है पर केजी के हिसाब से। अच्छा, इसका ये है कि थोड़ा सा आपने मार्केटिंग करनी है, काम आपने हाँ जी शुरू में करना है जी, और बाद में ये आपको प्रॉफिटेबल बिल्कुल बिजनेस है। तो इस तरह के डॉक्टर साहब मेरे नजदीक तो आइडियाज डिफरेंट हैं। जैसे मैं जो आइडियाज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो आम नौजवान है ना, वो MBA या जो भी ऐसी जैसे कोई मार्केटिंग की डिग्री कर ली है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उसने IT की डिग्री कर ली, वो इस तरह के 12 से 20 लाख तक वो अपना ना इसमें डिग्रीज में लगाता है। बाद में वो जो जॉब कर रहा है ना, वो ज्यादा से 25,000 या 30,000 से स्टार्टिंग देती है उसे। वो कहाँ कब जाके उस लेवल पे पहुंचेगा कि हाँ मैं अपने घर वालों को या अपना आप को स्टेबल कर सकता हूँ। ये जो छोटे छोटे आइडियाज है ना, जैसे 50 से 1 लाख, ये वो आइडियाज हैं जो हम अपनी स्टार्टिंग में ही अपने आप को 50 से 60,000 के बीच में अपने आप को महीने बाद खड़ा कर सकते हैं कि हाँ भी इतनी मेरी अमाउंट आएगी। बहुत से लोग मैंने आजकल देखे हैं, उन्होंने मार्केटिंग की जो जॉब थी उन्हें वो दे रहे थे 30,000 40,000 ऐसे MBA करने के बाद। MBA करने के बाद DVM करने के बाद भी कई मार्केटिंग कंपनीज में जाते हैं और स्टार्टिंग पे उनकी 50 to 50 के इसके अंदर ही होती 40 बस। उन्होंने वो फील्ड को छोड़ के उन्होंने अपना छोटा सा सेट स्टार्ट किया और वो कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे दुगना तिगना कमा रहे हैं, और साथ में उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में अगर आपने ये जॉब वाली उससे निकलना है ना, तो थोड़ा सा अपना इनिशियल लेवल पे अपना कारोबार को स्टार्ट करें और उसको अपनी जॉब के साथ साथ चलाएं, और जब आपको लगे कि हाँ मेरा कारोबार इस काबिल हो चुका है, तब आप अपनी जॉब को किक आउट करें, अपने कारोबार में अपने आप को। मैं एक और चीज ऐड करूंगा इसमें, मतलब ये थोड़ा सा रेंज से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यानी हमारे 5 लाख का बजट, किसी का 7 या 8 लाख तक बजट है, और ये बिजनेस करने का हम स्टूडेंट लाइफ में सोच रहे थे। अब हमारे उधर पास है एक सुल्तान टाउन, आपने भी सुना होगा, अली टाउन, जिसका मतलब कि लाहौर में जो रहते हैं ओरिएंट ट्रेन का लास्ट स्टेशन। अब उधर स्टूडेंट्स की जो रेशियो है बहुत ज्यादा है, उधर हमने एक हॉस्टल बनाने का सोचा था। अच्छा। अब वो जो हॉस्टल का मंथली किराया है विद मतलब वो एक बंदा सामान दे रहा है, उसके अंदर तकरीबन 23 कमरे हैं 23, और हर एक में मैट्रेस, और बच्चे उधर हैं। 8,000 रुपए पर सीट का रेट चल रहा है। अब वो जो बंदा था जिसे हमने लेना था वो आगे ग्रोथ करना चाह रहा है, कहीं और बड़ा हॉस्टल लेना चाह रहा है, क्योंकि सारी बात उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, उसके पास काफी हो गया है, पैसे हैं, तो आगे बड़ा हॉस्टल लेना चाह रहा है। तो हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली थी, तो आपको सारा सामान दे रहा था 2 लाख रुपए में। अच्छा। उसके अंदर एक वाटर कूलर है, 23 मतलब कि तकरीबन 63 मैट्रेस है, और सब में पंखे वगैरह लगे हुए हैं। वेरी गुड। और जो उस बिल्डिंग का किराया है वो 1.5 लाख रुपए है, और आपने 3 स्टोरीज के साथ वो देना है मालिक को, किराए पे आपने लेना है, तो तकरीबन आपका 6 से 7 लाख रुपए ये टोटल बन जाता है। उसके बाद आप उस हॉस्टल के ओनर है, और आपको मंथली उस क्या कहते हैं, हमने आइडिया लगाया था तकरीबन मंथली आपको प्रॉफिट जो होगा वो 40K होगा एक स्टूडेंट को। अच्छा। अगर वो ले लेता है 40,000 रुपया उसको मंथली आएगा बैठे बैठे घर में। बंदे को एक बंदा उधर रख के उसको 40K पे दे के, उसके बाद आप खुद ऑफिस में मतलब फ्री हो जब आके बैठ जाएं, बच्चे उधर सारा कुछ उधर आप CCTV से मैनेज कर सकते हैं वो, तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो ऐसे लोग जो 40-50 हजार की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि अगर उनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस की तरफ इस जो ये जो बिजनेस है ना, इसमें थोड़ी सी कंपैटिबिलिटीज आ जाती हैं। उसमें ये है कि एक कोई ऐसा आपके पास आदमी आ गया है या कोई ऐसा आपके पास स्टूडेंट ही आ गया है जो कहीं ना कहीं से मशकूक है, पुलिस को रिक्वायर्ड है, वो इस तरह के मेरे नजदीक इस तरह के उसमें बहुत ज्यादा आपको फिर इस पे काम करना पड़ता है। मतलब कि हमारे हॉस्टल वगैरह देखे ना, वो हमसे पहले एक साइन वगैरह करवाते हैं पेपर, उसके बाद हमारा CNSA वगैरह उनके पास चला जाता है, और वो स्टाम्प पेपर की तरह ना सारे साइन वगैरह करवा लेते हैं कि अगर आपको कोई, और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यही है कि आप अपने आप को पहले सेव करें, फिर आप उस बंदे को हायर करेंगे, तू आजा, हम तेरी सानू नीचे जरूरत है। ठीक है, तो जो भी बिजनेस करना है उसकी इंफॉर्मेशन आपने पूरी लेनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے بھائیوں نے آئیڈیاز دیے ہیں ان میں جو بھی آپ کو آئیڈیاز اچھا لگے نا اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس نے آئیڈیاز دے دیا یا اس نے آئیڈیاز دیے ہیں تو آپ نے وہ کام کل سے سٹارٹ کر لیا. نہیں, اس پہ تھوڑا سا انیشیل لیول پہ کام سٹارٹ کریں, اس پہ کچھ سیکھیں سمجھیں, پھر اسے اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں. اور لاکھوں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کوئی مطلب ایسی بعد میں وہ کہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی تو ڈسکلیمر پہلے دے رہے ہیں کہ ہم یہ بس ایک آئیڈیا آپ کو دے رہے ہیں, باقی اس پہ ریسرچ آپ نے خود کرنی ہے. جی بالکل. اس کے ساتھ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.